नमस्कार मित्रों, मैं आपके समक्ष पेश हो रहा हूँ और एक नया वीडियो लेके। और ये वीडियो वृद्धाश्रम का है। श्री काठियावाड़ निराश्रित बाल आश्रम संचालित ये वृद्धाश्रम है और ये वृद्धाश्रम मोरबी में स्थित है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ इस वृद्धाश्रम में कितने वृद्ध हैं, कैसे कैसे वृद्ध हैं, कहाँ कहाँ से हैं, कैसी उनकी सेवा हो रही है, किस प्रकार से वो रहते हैं, सारा डिटेल सारे वृद्धों से मैं आपको मिलाऊंगा। तो आप चलिए मेरे साथ चलते हैं इस वृद्धाश्रम में और मिलते हैं अंदर जाके। और ये सुषमा बहन जी है जो इस वृद्धाश्रम का पूरा संचालन कर रही है। तो वृद्धाश्रम के बारे में थोड़ा हमें बताएंगी कि ये वृद्धाश्रम कितने समय से चल रहा है और क्या क्या सेवा यहाँ पे दे रही है। वृद्धाश्रम मोरबी में पूरो अनारत थयो त्यारे सरकारे कीधुं के सारो ट्रस्ट होय एने सोंप्युं के तमे चलावो। बराबर। એટલે અમારે રાજકોટ બાલાશ્રમ છે, કાઠિયાવાડ નિરાશ્રિત બાલાશ્રમ 100 વર્ષ જૂની સંસ્થા છે। ઓકે। ઈ અમારી હેડ ઓફિસ છે, ત્યાંથી સંચાલન થાય। બરાબર। અહીંયાનું સંચાલનમાં હું સંભાળું છું, પણ આમાં અમારે ટ્રસ્ટ બધા રાજકોટના જ છે। અચ્છા। અને આ પૂરો અનારત થયો એને 45 વર્ષ ઉપર થયો એમ। ત્યારથી આપણે નિરાધાર હોય, નિસહાય હોય, તકલીફ હોય, બધા વડીલોને સાચવી છે। દીકરાવાળાને રાખી, રોડપતિ નહીં રાખી, કરોડપતિ નહીં રાખી, બધાને સાચવી। એવું નહીં કે ન રાખી, એમ ઘણા જગ્યાએ એવું હોય છે દીકરાવાળાને નથી રાખતા। તો જાજી તકલીફ દીકરાવાળાને જ છે અત્યારે। અચ્છા। અને બધાને ફ્રીમાં સાચવી છે। ફોટો, આધાર કાર્ડ, ચૂંટણી કાર્ડ, 2 જવાબદાર વ્યક્તિ જોઈએ। વ્યસન નથી કરવા દેતા। ફોન અઠવાડિયે એકવાર જ વાપરવા દે। બરાબર। એમ કરવા લઈ જાય। આ જીકે હોટલ છે ત્યાં જમવા ગયા હતા। જીકે માં લગભગ 2 મહિને જમવાનું હોય જ। મતલબ તમે જમવા માટે પણ એ લોકો બહાર લઈ જાય એમ। દાતા લઈ જતા હોય, લગ્નમાં જતા હોય, ફંક્શન માં લઈ જતા હોય, બધે જતા હોય એમ। સારા નર્સ એ લોકોને એમ લાગે કે અમે આપણા ઘરમાં જ છીએ। અને અહીંયા સમાજનો બહુ સાથ સહકાર સારો છે। કેટલા આપણે બુજુર્ગો છે અહીંયા? અત્યારે 50 છે। સાતમ દિવાળીએ બધા વયા જાય, સાત જાય ખરા ઘરે જાય ખરા। હા, દીકરી ને જાય, દીકરા ને કાકા ભત્રીજા ને જાય, ગમે ને જાય। 2-4 દી તો બધા રાખે ને, રાખે 2-4 દી તો બધાય કઈ આવો એમ। અને બીજું બેન, અહીંયા એડમિશન તમે કઈ રીતે કઈ ચાર્જ છે કે ના? ફ્રીમાં જ સર, બધાને રાખે ફ્રી। દવા, દારૂ, કપડા લત્તા બધું અહીંથી જ આપી છે। અત્યારે બધા પહેર્યા છે કપડા, એ બધું અહીંથી જ આપેલું। ગરમ કપડા તે બધું, બ્લેન્કેટ, ચાદર। અહીંયા દર મહિને સાબુ, કોલગેટ, તેલ, શિયાળો હોય તો વેસેલીન આપે, ઉનાળો હોય તો પાવડર આપે। બરાબર। શેમ્પુ બધું અહીંથી જ। આપણા ઘરમાં જે બુજુર્ગોની જરૂરત પડે એ બધી જરૂરિયાત અહીંયા પૂરી પાડી। હા, એકદમ ફ્રીમાં। શિયાળામાં બધાને 2-3 જોડી મોજા દઈ જ દઈ કે મોજા ફરજિયાત બધાય પહેરવાના છે। બરાબર। ક્યારે એવું બને ખરું બેન કે કોઈ બુજુર્ગ અહીંયા એડમિશન લીધો ને અહીંયા જોયો ને અહીંયા એ લોકોએ અંતિમ શ્વાસ લીધો, એવું બન્યું છે ખરું? ઘણા કેસ એવા જ બન્યા એમ કે અહીંયા ચોપ થઈ જાય ને અહીંયાથી તમે અગ્નિ સંસ્કાર કરી। અગ્નિ સંસ્કાર કરવા માટે અમારે અહીંયા પંચમુખી હનુમાનવાળા ભાઈઓ છે, પ્રહલાદભાઈ ઝાલા, એ અમે ફોન કરી એટલે એ લોકો આવે અને બધું વિધિ ને કરે બધું। પણ અમારી પાસે કઈ ચાર્જ લેતા નથી। પોતે ગ્રુપમાં જ વેચી લે છે એમ। અને લાડુ, ગાંઠિયા બધું જેમ બધા કરતા હોય એમ જ કરે। સરસ એમ। એક મોટી સેવા છે ને, એટલે અમારે ખાલી ફોન જ કરવો પડે। બસ એ લોકો પોતે ચલાવે છે સ્મશાન ની, તો એ લઈ જ જાય, બધું એ લોકો કરી લે। બા કેમ છો? શું નામ છે તમારું? જ્યોત્સનાબેન। જ્યોત્સનાબેન। અચ્છા, કેવું લાગે છે જ્યોત્સનાબેન? સારું લાગે છે। મજા આવે છે ને? ઠંડી બંડી લાગે છે કે નહીં? ઠંડી તો થોડીક લાગે। આનંદ છે ને અહીંયા? આનંદ છે। હવે તો 24 વર્ષ તમને થઈ ગયા, તો આ તમારું ઘર જ લાગતું હશે તમને એકદમ? ધ્યાન બહુ રાખે મારું। બહુ ધ્યાન રાખે છે? સારી રીતે સાચવે છે। સારી રીતે સાચવે છે। ઓકે। બાને કોઈ છે જ નહીં, બાળકો નથી। ખરવાડા હતા એ ઓફ થઈ ગયા। ઓકે। કોઈ બાળકો જ નથી, બિલકુલ કોઈ જ નથી। એટલે કેન્સર નું ઓપરેશન કરાવ્યું? 2 ગાંઠ હતી, 2 ગાંઠના કરાવ્યા રાજકોટ આપણે કેન્સર હોસ્પિટલમાં। વાહ વાહ। 3 લાખ ત્યારે વાપરા હતા આપણે 14 વર્ષ पहला। ओके, 14 ईयर्स पहले ये माजी का कैंसर का ऑपरेशन करवाया था मित्रों। अभी देखो 14 साल हो गए
और राजकोट की प्राइवेट हॉस्पिटल में इन्होंने ऑपरेशन करवाया था। अभी देखो माँ जी सही सलामत है। तो कितनी अच्छी सेवा करते हैं, धन्य है ऐसी संस्था को। हमारा ट्रस्ट तो बहुत सारू है भाई। जो कपल हैं, जो जोड़ी में है, उनके लिए अलग छोटा कमरा रखा हुआ है उनके लिए। तो यहाँ पे एक जोड़ी है, बहन जी बता रही है, तो चलो उनसे मिलते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं? मजा में हैं? केम छो माँ जी? सारू छे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मुंबई के? अंधेरी। भेगा जाव्या था? હા ભેગા છે એ વાત. અચ્છા, તો શું છે એમને બે દીકરીઓ જ છે. ઓકે. અને દીકરીઓ આર્થિક નબળા છે, માન થાય એવું છે. અચ્છા. એટલે બે, અને એક દીકરી તો અમદાવાદ છે, મેરિડ છે, પણ એ બે અપંગ છે, જમાઈ ને દીકરી. ઓકે. અને એક બોમ્બે દીકરી રહી છે, એ બોમ્બે માં માન એનું કરતા હોય. बराबर। मतलब देखो इनकी दो बेटियां हैं, एक बेटी तो दिव्यांग है, अपाई से बेचारी, और दूसरी बेटी है वो भी मतलब अपना खुद का गुजारा भी नहीं कर सकती इस परिस्थिति में। तो यहाँ पे दोनों है इधर पति पत्नी और आनंद से रह रहे हैं। कितना समय हुआ माँ जी आपको यहाँ पे? 2 साल हो गए। चलो, अच्छा है ना यहाँ पे? अच्छा है। बहन बहुत ख्याल रखती है। हाँ जी, हाँ जी। बुजुर्ग सारे आज बाहर बैठे हुए हैं, वो धूप सेक रहे हैं वो, इसीलिए रूम में आपको नहीं दिख रहे हैं। देखो ये बहुत बढ़िया जगह है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। बहुत यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो जबरदस्त है। देखो आप पेड़ पौधे देखो, ऐसे लगता है जैसे किसी गार्डन में आ गए। बहुत अच्छा लग, कोई फार्म हाउस में अगर हम रहते हैं ना, वैसा फीलिंग यहाँ पे आता है। इतना अच्छा माहौल है यहाँ पे। मित्रों देखो ये जो रूम है, ये कपल के लिए रूम है। ऐसे ऐसे बहुत सारे रूम है, एक ही के रूम भी आप देख लीजिए, बाहर से सारे कपल है अंदर। थोड़ा दिखा दीजिए, आप पूरा घूम लीजिए। जय श्री कृष्ण। केम छो बधा? आनंद छे? ठंडी केवी लागे छे? बहु ठंडी पड़े छे। अच्छा, जय श्री कृष्ण। हूँ तमारी वच्चे बेसू? શું નામ છે આપનું? દાદા નિરંજનભાઈ. નિરંજનભાઈ. તમારું? માળિયા તાલુકાનું ભાવપુર. ભાવપુર ગામ. नाम શું છે તમારું? રેવાભાઈ હીરાભાઈ. रेवाभाई हीराभाई। मित्रों देखो ये बुजुर्ग कितनी मस्ती में बैठे हुए हैं यहाँ पे, अच्छी धूप ले रहे हैं, और सुबह का समय है और व्यवस्था भी अच्छी की गई है सब लोगों के लिए। खुश है सब, बहुत मजा कर रहे हैं। मजा आवे छे ने? એકદમ મજા, આરામ, आनंद आवे छे? આનંદ આનંદ. मित्रों देखो यहाँ पे एक रूम है, ऐसे काफी रूम है। यहाँ पे बुजुर्गों का बेड लगा हुआ है, सबके लिए सेपरेट सेपरेट कबोर्ड है। इसमें सारे सब लोगों का सामान पड़ा रहता है, और इनके लिए सेपरेट एक वॉशरूम की व्यवस्था की गई है। अंदर 3-4 वॉशरूम है। बुजुर्गों को बहुत ही अच्छी सेवा कर रहे हैं ये लोग। ऐसी भी लगा दिया है ताकि बुजुर्गों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। तो बहुत बढ़िया है। देखो ये मच्छरदानी भी लगी हुई है, अगर किसी को ऐसी एलर्जी है तो उनको मच्छरदानी भी लगा के देते हैं। हाँ, और एक चीज आपको बता दूं मित्रों, देखो यहाँ पे अभी ठंडी का सीजन है तो हीटर भी लगा हुआ है, तो बुजुर्गों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो उनकी काफी ध्यान रखा जाता है। सारे रूम हैं बुजुर्गों के, और सारे रूमों के सामने एक बेड मतलब सोफा सेट जैसा लगा हुआ है, तो वो बाहर भी आराम से बैठ सकते हैं। तो बहुत बढ़िया फैसिलिटी है यहाँ पे। पानी पीने का मटका यहाँ रखा है, रूम में कुछ नहीं रखते। अच्छा छो बा, जय श्री कृष्ण। केम छो? आनंद छे ने? केवुं लागे छे अहींया? सरस छे ने? આ બેન છે એટલે અમને ચિંતા નથી. એમ ને? બહુ સંભાળે. જો ભગવાન છે ને ક્યાંક ને ક્યાંક કોક ને આપણા માટે મોકલી દે છે। જો બેન કેટલી બધી સેવા કરે છે તમારી। કેમ છો બા તમે? મજામાં ને? જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ। કેમ છો બા? આનંદમાં બધા? કેમ તડકામાં બેઠા છો? શું નામ છે બા તમારું? જયાબેન. જયાબેન। સરસ સરસ। કેટલા વર્ષથી છો બેન? 7 વર્ષ થઈ ગયા. 7 વર્ષ થયા। એને પગ ક્રેક થઈ ગયો તો 3 કટકા થઈ ગયા હતા, ઓહો. ઓપરેશન કરાવ્યું, ઓહો, હવે ચાલે છે, વાંધો ન આવે, પણ આમ થોડોક તકલીફ પડે એમ। અચ્છા, હવે ચાલવામાં તકલીફ નથી ને? થોડી હશે, પણ થોડીક હશે।
બીજો ગોઠણ દુખે છે, અચ્છા. બીજો ગોઠણ દુખે. ઈ પગમાં નથી તકલીફ, પણ બીજા એ ગોઠણ. તો પડી ગઈ હતી ને બાથરૂમમાં, એટલે આ પગમાં જરાક ઓલું થઈ ગયું. हाँ पर अभी बराबर है ना। हाँ। मित्रों देखो ये माँ जी है ना महाराष्ट्र से आई हुई है। क्या नाम है माँ जी आपका? हल्का। अलका जी। हाँ हाँ। कैसा लग रहा है यहाँ पे गुजरात में? हाँ, गुजरात में तो इधर गुजराती भाषा आता है। आता है? सीख गए? कितना टाइम हुआ आपको यहाँ? और यहाँ आज पहली बार ही आया। मतलब અઠવાડિયું 10 દી થયા. अठवाडिये थे, एक वीक हुआ आपको तो गुजराती सीखी गया? हाँ, हम क्या काम करता था ना भाषा पे। अच्छा उधर गुजराती यहाँ, लोग थे। ओके ओके। केम छो बा? देखो अब ये बात तो बहुत बुजुर्ग लग रहे हैं, इनकी उम्र ज्यादा है। દેખાતું નથી હા. બાને. बा केम छो? हाँ ने है। सारू छे? हाँ, ठंडी નથી લાગતી? ठंडी लागे शू करूं। ठंडी तो बहुत लागे। બહુ લાગે છે ને? ઓકે ઓકે। ભગવાન લઈ જાય તો સારું। ના ના એવું શું કામ બોલો છો પણ? જ્યારે ટાઈમ આવશે ત્યારે લેશે, એમને એમ થોડી લઈ। ઈ એકલા જ છે ને, હસબન્ડ હતા, બાળકો નથી, બાળકો નથી એમ નહીં. तो अभी बहन जी बता रही है कि अभी जो घंट बजा, मतलब जो अभी बेल बजी तो नाश्ते का टाइम हुआ है, तो ये लोग क्या करते हैं, बुजुर्गों को फूड पैकेट दे देते हैं, वो खुद लेके कहीं भी उनको जहां भी मजा है, ऐसा नहीं कि एक जगह पे बैठ के खिलाते हैं, जिसको जो भी पूरा फ्रीडम है, जहां भी खाना है आराम से बैठ के खाए, कोई धूप में बैठता है, कोई सोफा पे बैठ के खाता है, कहीं भी खा सकता है, मतलब इतना सारा फ्रीडम है, तो बहुत बढ़िया फैसिलिटी है बहन जी। ને સવારે નાસ્તો આપી, 7:30 10 વાગે આપી નાસ્તો, 12 વાગે જમે, બરાબર। એમાં દાળ ભાત શાક રોટલી મિષ્ટાન ફરસાણ હોય જ, अच्छा અને 3:30 ચા નાસ્તો કરે, પછી પાછા 5 5:30 કરે કઈ अच्छा ફ્રૂટ કે આ રાતે જઈમાં પછી બધાને એક એક પેકેટ આપી કે રાતે ભૂખ લાગે તો એ લોકોને રૂમમાં ખવાય એમ। નાસ્તો 4 વાર આપી એમ તો। मित्रों देखो यहाँ पे एक दवाखाना भी है, मतलब डिस्पेंसरी भी है, बुजुर्गों को अगर छोटी मोटी तकलीफ है तो यहाँ से दवाइयाँ देते हैं। वाह वाह वाह, देखो ये है ना पहलवान बुजुर्ग है हिम्मत वाले। और कैसे बढ़िया है इधर सब? बस ठीक है। कहाँ के रहने वाले आप? ये अभी तो मैं बोरीवली में रहता था। बोरीवली के हैं? हाँ, बोरीवली। अच्छा मुंबई से? मुंबई से बोरीवली। मुंबई से ज्यादा लोग हैं यहाँ पे। कांदिवली कांदिवली कांदिवली। कांदिवली बाद में विरार। मित्रों मेरे को ये बुजुर्गों के साथ झूला झूलने में बहुत ही मजा आता है। અયોધ્યા ગયા હતા ભાઈ ને યાર વાત કરો અયોધ્યાની। अयोध्या से हैं आप? अयोध्या गए ना? आप अयोध्या से हैं? नहीं, अयोध्या જઈ जाके આવ્યા, हम लोग। अयोध्या जाके आए? પ્રવાસ ગયા હતા અયોધ્યા अच्छा અને 500 ફૂટ ઉપર ચડવાનું। अच्छा ચડી લીધું, तो ચડી क्या ગયા। यहाँ थी क्या? અહીંથી જ પ્રવાસ લઈ ગયા હતા અયોધ્યા। वेरी गुड। मित्रों देखो यहाँ से अयोध्या का प्रवास भी लेके गए थे बुजुर्ग को, અને वो बता આ रहे हैं। વળતા પાછા यहाँ से चढ़ने के लिए 550 फुट ऊपर चढ़ने का। अच्छा चढ़ के आए हम। चढ़ के आए? चढ़ के देखो ये यहाँ का कमाल है। यहाँ એમની से- ઉંમર વધારે છે, हाँ? આપની उम्र पूछो कितना से उम्र है आपका? 94 चढ़વાનું। ओ પગનું ઓપરેશન છે તોય ચાલે ના પાડે। મેં કીધું વ્હીલચેર લઈ લે हाँ हाँ તો કે ના ના એની વાય મારે હાલવું પડ્યું, હું માન આવી લે। और ऊपर से जा रहे एकदम ऊपर चढ़ी गया? एकदम ऊपर। એટલે આમાં ફરવાનું બહુ છે ને એમાં Very good. અયોધ્યામાં ફરવાનું બહુ છે ચડવા કરતા એમ। अच्छा, तो તમે અમે તો હજી ગયા નથી, તમે તો દર્શન કરી અને આવ્યા। વળતા શેમાં આવ્યા, વળતા શેમાં આવ્યા? और तो प्लेन में आया। वाह दादा हमने प्लेन में ले आया। वाह रे वाह, प्लेन में लिया है? हाँ, गुड, बहुत सारे। 1.5 देखो कलाक में आया। 1.5 घंटे में यहाँ? 1.5 घंटे में। देखो मित्रों ये बुजुर्ग बता रहे हैं कि ये संस्था वालों ने इनको अयोध्या में जब राम जी का मंदिर बना है वहाँ पे इनको लेके गए थे यात्रा करवाने, वहाँ अच्छी तरह से उन्होंने यात्रा किया और वापस जब वो प्लेन से आए और 1.5 घंटे में यहाँ पहुंचे, बुजुर्ग वो चीजें याद करके कितना खुश हो रहे हैं। देखो उसमें ही इतनी खुशी है। तो प्लेन में बेसी गए थे मैं? हाँ, ધનજીભાઈ ભગવાનજીભાઈ ખરેડા વાળા છે, દાતા ઈ છે ओके ધનજીભાઈ અમારા અહીંયાના। ઈ અમને 3 વાર હરિદ્વાર લઈ ગયા છે, ओके એક વાર ગોકુળ મથુરા, એક વાર જગન્નાથપુરી। अच्छा પણ એમને બહુ જ શોખ છે એવો કે જાત્રા અમારા વડીલોને બરાબર। અને વળતા ટિકિટ નથી મળતી તો પૈસા વધારે દઈને એમને કરાવી। ओहो ઈ કે માર પ્લેન માં તો એના સન ને કઈ તું મને વચન દે हाँ કે હું કદાચ ઉંમર વાળા છે, હું ઓફ થઈ જાઉં તો તું આ લોકોને પ્લેન માં લઈ જઈશ। ओहो એટલે चलो सरस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत 7 વાર અમે અહીંથી હરિદ્વાર જઈએ। 7 बार जाइए।
અને 2 વાર 3 વાર ગોકુળ મથુરા વૃંદાવન જઈ આવ્યા છે. અને 2 વાર તો કચ્છમાંથી જ લઈ ગયા હતા. અચ્છા, કચ્છમાં હરેશભાઈ પંડ્યા. અચ્છા, હરેશભાઈ પંડ્યા છે ને, એ ઋષિકેશ લઈ ગયા હતા અમને 2 વાર કથા સ્વામિનારાયણ મંદિરે. વાહ વાહ. સાતમ આવે, દિવાળી આવે, બધાને સાતમ ને ઉપર ફરવા લઈ જાય, મેળામાં લઈ જાય. ગણેશ ઉત્સવમાં બાર બધાને ગણેશ ઉત્સવમાં બધે મોટા મોટા ગણેશ હોય ત્યાં લઈ જાય દર્શન કરવા, બસ બાંધીને. નોરતામાં લઈ જાય, ડિસ્કો દાંડિયામાં બધાને. દિવાળી બેસતા વર્ષે બાર મંદિરે લઈ જાય સાંજે આજુબાજુમાં, કે એને એમ ન થાય કે અમારે ક્યાંય જવાનું નહીં, કે એમ બેસતા વર્ષે બાર લઈ જાય. भोजनालय है और बहुत सुंदर भोजनालय है। यहाँ पे देखो, आप देखोगे टेबल और कितनी अच्छी है, और चेयर्स भी देखिए, मतलब वो पुराने जमाने में जो डाइनिंग टेबल रखा करते थे ना, उस प्रकार की ये डाइनिंग टेबल है। अभी सर्दी का सीजन चल रहा है, इसलिए सारी खिड़कियां बंद है। अगर ये सर्दी का सीजन नहीं होता तो सारी खिड़कियां खुली रहती, तो एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा रहता, बाहर से भी ठंडी ठंडी हवा आती और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। मित्रों देखो, यहाँ पे चेयर लगी हुई है, ये आईना लगा हुआ है। यहाँ पे क्या है पता है, यहाँ जो बुजुर्ग रहते हैं ना, उनकी दाढ़ी और बाल बनाने के लिए एक हेयर ड्रेसर आता है और यहाँ बिठा के उनका बाल दाढ़ी कराता है। तो देखो व्यवस्था अच्छी है, यहाँ पे कबोर्ड है, सारा सामान पड़ा है, फैन लगा हुआ है, चेयर है, सब कुछ है यहाँ पे। यहाँ पे टीवी की व्यवस्था की गई है, जितने भी बुजुर्ग, और यहाँ देखिए चेयर भी लगा हुआ है, तो जो भी बुजुर्ग रात को टीवी पे जो भी धार्मिक सीरियल या कुछ भी उनको देखना है तो देख सकते हैं। मित्रों देखो, इस वृद्धाश्रम में एक ऐसी व्यवस्था रखी गई, आप देखिए यहाँ पे गणपति बापा की मूर्ति है और बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे, राधा कृष्ण का, संतोषी माँ का मंदिर है, हनुमान जी का है। तो सारे बुजुर्ग यहाँ पे आके पूजा पाठ करते हैं और 3 टाइम वो आरती करते हैं और भक्ति भाव करते हैं। बहुत ही अच्छा और धार्मिक माहौल है और बहुत अच्छा लगा ये सब देख के। एक बार धुन भजन होय, 4 થી 5:30 धुन भजन करे, अच्छा, समूहમાં બેસીને। अच्छा, ચોથી વારી ओके। आधा ढूंढ किसने मेरा श्याम देखा, राधा तेरा श्याम मैंने गोकुल में देखा, राधा तेरा श्याम मैंने गोकुल में देखा, गैया चराते हुए के राधा तेरा श्याम देखा, राधा किसने मेरा श्याम देखा। रामचंद्र भगवान की जय। खाक में खपी जाना मंदा, माटी से मिल जाना, तमे मत करो ये बेमाना, एक दिन पवन से उड़ी जाना। वाह वाह वाह। मित्रों, मैंने आपको पूरे वृद्धाश्रम का दौरा करवाया, सारा वृद्धाश्रम हम लोग घूमे, मैंने आपको दिखाया कितना अच्छा और सुंदर वृद्धाश्रम है। और वृद्ध भी इधर सारे लोग बहुत खुश है, और केवल गुजरात के नहीं है, गुजरात के भी हैं, महाराष्ट्र के भी हैं, कई और स्टेट के भी वृद्ध यहाँ पे हैं और बड़ी उम्र के हैं सारे। और मैंने देखा, एक एक बुजुर्ग से मिला, माँ जी से मिला, बाबूजी से मिला, सब लोगों से मैं मिला, अलग अलग बातें की और पूरे वृद्धाश्रम का दौरा करवाया। बहुत ही अच्छा लगा, वृद्ध इतने खुश हैं, उनको यात्रा भी करवाते हैं, अयोध्या, हरिद्वार, गोकुल, मथुरा, सब जगह पे जगन्नाथपुरी सब जगह पे घुमा के आए हैं ये संस्था। तो बहुत बड़ी संस्था है। और मैं ये बहन जी, सुषमा बहन जी है जो हमारे साथ जुड़ी थी और पूरी संस्था का मैं दौरा करवाया। तो बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, आपने हमको सहयोग दिया, बुजुर्गों से मिलाया, तो बहुत अच्छा लगा। संस्था चला रही है, अगर उसको आप डोनेशन देना चाहते हैं तो आप उनको डोनेशन दे सकते हैं। उनका पूरा डिटेल, आप डोनेशन इसको किस प्रकार से देंगे, कैसे देंगे, यहाँ का कॉन्टेक्ट नंबर पूरा डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप चाहें तो इस संस्था को डोनेशन दे सकते हैं, क्योंकि ये जो संस्था चल रही है ना, निस्वार्थ संस्था है, वो यहाँ पे किसी बुजुर्ग से कोई चार्ज नहीं करते, बिल्कुल फ्री में रखते, सबको फ्री में रखते और पूरी जिम्मेदारी के साथ रखते हैं। उनके इतना अच्छा ध्यान रखते हैं, ख्याल
ख्याल रखते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, घुमाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, तो आप समझ सकते हो ये सब जरूरियातें पूरे करने के लिए कितना पैसा लगता है। तो ये किसी से लेते नहीं है, जो डोनेशन देते हैं, जो दाता देते हैं, वो खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो डिटेल डालूंगा, तो आप जितना हो सके इस संस्था को आप डोनेशन दीजिए, ये मेरा आपसे विनंती है। मित्रों, मैं वीडियो का एंड करने जा रहा हूँ और बहन जी से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग हमें दिया। બેન આપ આવ્યા અહીંયા, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર। અને આમ જ આવતા રહેજો, અમારા વડીલોને મળો તો આનંદ થાય, પૂછે કોઈ તો એને ગમે, બસ આવી રીતે સહકાર આપતા રહેજો। ધન્યવાદ, ખૂબ ચોક્કસ આભાર। ચોક્કસ ચોક્કસ।